سے تاخیر کا شکار، روڈ کی بندش اور گرد و غبار سے اہل علاقہ کی مشکلات بڑھ گئیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ واسطہ کی نااہلی یا پھر انتظامیہ کی بے حسی، لودھی کالونی کا گلگشت اور نواب پور سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ 8 ماہ قبل نواب پور روڈ پر سیوریج لائن ڈالنے کا کام شروع کیا گیا، جو آج تک مکمل نہ ہو سکا۔ اب آپ یہ دیکھیں گنجان علاقہ ہے یہ آپ کو لگ نہیں رہا نواب پور روڈ، یہ آپ کو لگتا ہے کوئی کسی ریگستان میں ہم کھڑے ہیں۔ یہ بڑے بڑے ٹیلے بنے ہوئے ہیں، حالانکہ پیچھے سے کام اگر کمپلیٹ ہو گیا اس کو لیول کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ 6 سے 7 علاقوں کو ٹچ کرتا ہے یہ روڈ۔ لودھی کالونی روڈ پر سیوریج لائن کے لیے کھودے گئے گڑھے موت کا پیغام دینے لگے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ روڈ کی خستہ حالی کے باعث ایمبولینس کا آنا بھی ممکن نہیں۔ انتظامیہ جلد کام مکمل کرے۔ روڈ کی حالت یہ ہے کہ 7-8 ماہ مکمل ہونے کو ہے اور روڈ ویسے کے ویسے پڑا ہے۔ ان کا کام یہ تھا کہ ایک گٹر کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو آگے روڈ سیدھا کر کے دیں، یہ بھی نہیں کر رہے۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ دھول اور مٹی کے باعث وہ سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان۔ میاں والی میں قائم 57 پرائیویٹ ہسپتالوں کی اب خیر نہیں۔ محکمہ ماحولیات کا کہنا ہے کہ انفیکشن ویسٹ کو درست طریقے سے زائل نہ کرنے پر سخت کارروائی ہوگی۔ اختر مجاز کی رپورٹ۔ شیخ زید اسپتال رحیم خان میں ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی پریس کانفرنس۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز 2 سال سے ایڈ ہاک پر کام کر رہے ہیں، ہر بار ان کی نوکری کی تجدید کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ حکومت واضح پالیسی مرتب کرے۔ عاصم صدیق کی رپورٹ۔ خواجہ فقih یونیورسٹی میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلمان طاہر نے گریڈ 1 سے لے کر 16 تک کے 37 ملازمین کو سرکاری نوکری کا پروانہ دیا۔ وائس چانسلر کا کہنا تھا کہ سب سے اہم کام ملازمین کو مستقل کرنا تھا۔ پروفیسر ڈاکٹر سلمان طاہر: ہماری اعلیٰ حکام سے یہی گزارش ہے کہ وہ یہ ایڈ ہاک جو ہے 1 سال کے لیے وہ ایڈ ہاک ضرور دیں، لیکن جو ڈاکٹر 1 سال اپنا ایڈ ہاک پورا کر لیتے ہیں، یعنی کہ وہ شو کرتے ہیں کہ ہم پوری ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے، تو نیکسٹ ٹائم ان کا ایڈ ہاک رینیول کی بجائے ان کو 3 سال یا 5 سال کا کانٹریکٹ دینا چاہیے۔ مستقل سرکاری نوکری کا لیٹر وصول کرنے والوں کی خوشی دیدنی تھی۔ واکس پاپ: ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں یہ لوگ جو ایڈ ہاک پہ ہمارے پاس 200 ڈاکٹرز کے قریب کام کر رہے تھے، انہوں نے کووڈ آئی سی یو میں ڈیوٹی کی ہے، کرونا میں آئسولیشن میں ڈیوٹیز کی ہے، فلو فلٹر میں ڈیوٹی کی ہے، اب ڈینگی کا چل رہا ہے کرائسس، اب وہاں پہ بھی یہی لوگ ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ایک ٹرینڈ آئی سی یو کے لوگ، جہاں اینستھیزیا کے ٹرینڈ لوگ، آئسولیشن کووڈ کے ٹرینڈ لوگ، یہ ان کو آپ نکال کے نئے لوگوں کی بھرتی کرنا چاہ رہے ہیں؟ جتنی جلدی ہو سکے کم از کم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی تو پالیسی واضح کر دیں، کوئی ایک ڈپارٹمنٹ تو آپ صحیح طریقے سے چلا لیں۔ سرکاری مستقل نوکری حاصل کرنا ایک خواب ہوتا ہے، اور خواب کی تکمیل ہو جائے تو کام میں مزید بہتری کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ کیمرہ مین انور سویل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی رسوئی گیس بحران سر اٹھانے لگا۔ ڈی جی خان میں لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی، شہری پریشان ہو گئے۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی۔ ایک طرف سوئی گیس کا بحران ہے، جبکہ دوسری جانب ایل پی جی مہنگی ہو گئی۔ ڈی جی خان کے شہری مشکل میں پھنس گئے۔ بہت زیادہ دشواری ہے، بلکہ اتنے تک دشواری ہے کہ تقریباً کل یا پرسوں دی بار میں گنن واسطے گیا، میں کہ ایل پی جی میں اگوں مزید شارٹ تھی بنا لیے، کوئی سلنڈر وغیرہ گنوں، یقین کرو سلنڈر بھی نہ ملتا پیا مارکیٹ میں، وہ بھی بلیک دے 4000 والا سلنڈر 6000 کا ٹھیک ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ایل پی جی 220 سے 230 روپے فی کلو مل رہی ہے۔ سوئی گیس نہ ہونے کے باعث کافی دشواری کا سامنا ہے۔ گھروں میں جو ہے نا گیس نہیں ہے، اور شہر سے جو لے کے جاتے تو وہاں پہ مہنگے ہوتے۔ حکومت سے گزارش ہے کہ ہمیں گیس بھی دے دے گرم، اور یہ مہنگائی تھوڑا سستا کیجیے۔ ڈی جی خان کے شہریوں نے ایل پی جی سستی اور سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین ریحان علی کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ خانیوال کے حلقہ پی پی 206 کے ضمنی انتخاب میں پرانے حریف خاندان ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ پارٹیاں تبدیل ہو گئی ہیں۔ نون لیگ نے پی ٹی آئی کے سابق ٹکٹ ہولڈر رانا سلیم حنیف کو اپنا امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ تفصیلات کے لیے ندیم مغل کی رپورٹ۔ تاریخ کی ستم ظریفی یا حالات کی مجبوری، خانیوال کے حلقہ پی پی 206 میں ضمنی انتخاب میں ایک بار پھر لوٹوں کی پذیرائی ہے۔ نون لیگ نے 2018 کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی کے امیدوار رانا سلیم حنیف کو اپنا امیدوار نامزد کر دیا۔ 3 سال پہلے تک پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز رانا سلیم حنیف جلسوں میں نواز شریف کو چور کہتے ہوئے گالیاں دیتے رہے۔ 25 تاریخ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، اور آپ کی طاقت سے جو یہ خانیوال کے چور ہیں، یہ نئی جیل میں ہم سب ان کو بند کرا دیں گے۔ پی پی 206 کی نشست نشاط احمد ڈاہا کے انتقال پر خالی ہوئی، جو 2018 میں اس حلقے سے نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن جیتے، لیکن چند ماہ بعد فارورڈ بلاک میں شامل ہو کر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔
2 साल कबल हमजा शहबाज के ताया को गालियां देने वाले राना मोहम्मद सलीम हलीफ ने लाहौर में उनके हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। अब उन्हें ज़िमनी इंतखाब के टिकट से नवाज दिया गया है। दूसरी तरफ पीटीआई के टिकट के लिए मरहूम निशात डाहा की बेवा नौरीन निशात डाहा और मरहूम के भांजे मसूद मजीद डाहा में मुकाबला चल रहा है। खानदानी जराये के मुताबिक नौरीन निशात को तहरीक इंसाफ का टिकट मिलने के इम्कानात बढ़ गए हैं, ताहम अभी बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन जनरल इंतखाबात के लिए मुतहरिक वोटर लिस्टों की नजरसानी का मरहला शुरू कर दिया गया। वोटर लिस्टों का सामान हेडक्वार्टर से मुल्तान पहुंच गया। हमें रिपोर्ट करेंगे अमजद मालिक। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स लिस्टों की नजरसानी का मरहला शुरू कर दिया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सलीम अख्तर खान के मुताबिक आज से बाकायदा घर घर वोटर लिस्टों की नजरसानी शुरू कर दी गई है। शहरी वोट का अंदराज और अखराज करवा सकते हैं। पहली बार इलेक्शन कमीशन के अमले को इलाके का नक्शा भी फराहम किया गया। इसके लिए हम तमाम जो व्यूज हैं, AROs हैं, हम उनको इसके मैप भी दे रहे हैं एरियाज के, और उसके साथ डिस्क्रिप्शन भी है, ताकि पहले ये होता था लोग हमें शिकायत करते जी फैमिली में से आधे के वोट इस साइड में है, दूसरे को दूसरे ब्लॉक में है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि अवाम अमले के साथ ताउन करें। मुल्तान में 2500 से ज्यादा अमला तैनात किया गया है। हमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से हदायत दी गई हैं कि हर घर का हर फर्द अपने असल ब्लॉक में असल जगह पर चला जाए। उसके लिए हम घरों में जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं उनके वोट कहाँ पर हैं, क्या इंतराज है। वोटर लिस्टों पर नजरसानी का मरहला 6 दिसंबर तक जारी रहेगा। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि ताजरों की धमकी भी काम न आई। FBR ने शिकंजा मजीद सख्त कर दिया। तमाम मुतालबात मुस्तरद। तर्जुमान RTO साउथ पंजाब मुख्तार हुसैन थीम का कहना था कि डिफाल्टर्स की उसके बैंक से अकाउंट रिकवरी की जाएगी, एहतजाज करके ब्लैकमेल मत किया जाए। मुल्तान के ताजरों और FBR आमने सामने आ गए। ताजरों ने हड़ताल की धमकी दे दी। FBR ने भी शिकंजा मजीद सख्त कर दिया। तमाम मुतालबात मुस्तरद कर दिए गए। तर्जुमान RTO जनूबी पंजाब मुख्तार हुसैन थीम ने रोही को बताया कि जो डिफाल्टर होगा इसके बैंक से रिकवरी होगी। हमने पहले नोटिस वगैरह दिए हैं कि जो हम समझते हैं कि ये हमारे टैक्स नेट में आते हैं, जो बड़े बड़े प्लाजे हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड शॉप हैं, हम उन्हें चाह रहे हैं कि अपने टैक्स नेट में लाएं और उनकी जो ओरिजिनल जो उनकी सप्लाई सेल वगैरह हैं वो हमारे नेट में आ सकें। वो तर्जमान RTO जनूबी पंजाब मुख्तार हुसैन थीम का मजीद कहना था कि टैक्स चोरी का अख्तियार किसी को नहीं देंगे, एहतजाज करके ब्लैक मेल ना किया जाए। अगर वो हमारे उस जो लेटर की कंप्लेंस नहीं करते तो अल्टीमेटली उनको 10 लाख रुपए के हिसाब से उनको जुर्माना भी हो रहा है, जो कि अपीलेबल है। और अगर वो कंप्लेंट्स करते हैं, वो अपने आप को FBR से इंटीग्रेट करते हैं, मुंसलिक हो जाते हैं, तो फिर उन्हें जुर्मानों से भी बच जाएंगे। तर्जमान RTO जनूबी पंजाब मुख्तार हुसैन थीम का ये भी कहना था कि एहतजाज की बजाय डिफॉल्टर्स टैक्स अदा करें। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। महंगाई के तूफान ने ज़राई आलात और मशीनरी को भी अपनी लपेट में ले लिया। गुज़श्ता 3 माह के दौरान ज़राई मशीनरी की कीमतों में 50% इजाफा हुआ है। किसान और दुकानदार परेशान हैं। अली रियाज की रिपोर्ट। महंगाई के तूफान ने ज़राई आलात और मशीनरी को भी लपेट में ले लिया। गुज़श्ता 3 माह के दौरान ज़राई मशीनरी की कीमतों में 50% तक इजाफा हो गया। किसान और दुकानदार दोनों परेशान। 1 लाख रुपए में फरोख्त होने वाला हल 2 लाख, जबकि डिस्क हल 2 लाख से 3 लाख और रोटावाइटर 1,60,000 से 2 लाख में फरोख्त होने लगा। बूम स्प्रे मशीन 1,45,000 से 1,85,000 और स्लैज बैलर की कीमत 13 लाख से 45 लाख हो गई। सामान हमें रोटावेटर की, जैसे कि अब गंदम की बिजाई और हमें रोटावेटर की ज़रूरत है, बीज लगाने के लिए ड्रिल की ज़रूरत होती है, तो अब वो हम परचेज़ करने के लिए आए हैं, तो लेकिन इनकी प्राइसेस पहले से 2 गुना बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना किया जा रहा है। किसान का कहना था कि हुकूमत को ज़राई मशीनरी में सब्सिडी देनी चाहिए। अगर किसी लोकल चीज़ को हम बनाते हैं तो लोहा महंगा है, मजबूरी तौर पर हमें उसका रेट बढ़ाना पड़ता है। हम बहुत परेशान हैं। रेट कम होना चाहिए, लोहा सस्ता होना चाहिए, फिर रोल सस्ता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास फार्मर रास्ता नहीं है। दुकानदारों का कहना था कि महंगाई की वजह से कारोबार शदीद मुतासिर हो रहे हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया की कार्रवाइयां भी काम ना सकीं। चीनी बदस्तूर महंगी है, 135 से 140 रुपए में फी किलो में फरोख्त होने लगी। कोट मिठन में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मजीद देखिए इस रिपोर्ट।
मुजफ्फरगढ़ में भी चीनी की कीमत आसमान पर पहुंच गई। जमीन पर रहने वाले तरस गए। मार्केट में चीनी 135 से 140 रुपए में फरोख्त होने लगी है। शहरी कहते हैं जिला इंतजामिया की कार्रवाइयों के बावजूद निर्खों में कमी ना होना समझ से बालातर है। पेट्रोल की औसत है, चीनी, आटा, इस हुकूमत ने हमारे लिए तो बहुत ही माशाल्लाह बेनिफिट रख दिए एक किस्म के, कि हमारे लिए इतने आसाइशें पैदा कर दी हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। यही बात तो हमें भी समझ नहीं आ रही। अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर ऐसे आम दुकानदार कैसे अपनी मर्जी से चीज़ बेच सकता है। लेकिन जैसे कह लें कि अभी अपना ये एक अपना स्टोर जो है सील किया गया था दिल पसंद, ठीक है, उसके ऊपर भी यही था कि भी 130 रुपये रेट उन्होंने किया हुआ था, 90 रुपये सरकारी रेट था, लेकिन 90 रुपये सरकारी कहा जाता है, मिल तो नहीं रहा। दूसरी जानिब कोट मिठन में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। यूटिलिटी स्टोर से पहले ही चीनी नायाब थी, अब ओपन मार्केट से भी गायब हो गई है। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का कहना था कि हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 दिन चीनी आती है। शहरियों का कहना था कि बाजार में तो चीनी मिल ही नहीं रही, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। चीनी के हवाले से बात की जाए तो चीनी मेरे ख्याल से यहाँ पर अवेलेबल तो है, लेकिन कम मिकदार में है, क्योंकि शहर की आबादी ज़्यादा होने की वजह से चीनी कम मिकदार में मिलती है। ज़िले इंतजामिया को चाहिए कि चीनी जो है ना वो शहर की आबादी के हिसाब से यहाँ पर तकसीम करें ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। हम यूटिलिटी स्टोर का जो है ना रुख करते हैं, यहाँ सौदा साहब जो हमें थोड़ा जो है ना बाजार से थोड़ा जो है ना रियायत पर मिल जाता है, और ख़ासकर चीनी जो है ना चीनी वो हमें नहीं मिल रही। और यूटिलिटी स्टोर पर भी जो है ना कभी 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद चीनी मिलती है, वो भी कम मिल रही है। शहरियों ने नाजायज मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। हाय महंगाई, जामपुर के शहरी और ताजिर हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं महंगाई ने कान पकड़वा दिए। पीटीआई सरकार अपने दावों के उलट काम कर रही है। जावेद इकबाल की रिपोर्ट देखिए। महंगाई का न थमने वाला तूफान, शहरी परेशान। एलपीजी, खादें, चीनी, घी, आटा और दीगर अशियाए खुर्दनोश महंगी होने से शहरियों को जान के लाले पड़ गए। कहते हैं पीटीआई सरकार अपने दावों से उलट चल रही है। और बात थी कि असां महंगाई की बहुत शरावादी की है कि असनी 500 रुपए दी महार 2550 रुपए का सिलेंडर के आखड़े, 400 रुपए घी के आखड़े, सब्जी गई खड़े, असां किथा वञूं दसो। गैस एसोसिएशन के नायब सदर मिर्जा तारिक का कहना था कि गैस के रेट बढ़ने से कारोबार बंद हो रहे हैं। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करे। बिल्कुल कारोबार बहुत ज्यादा मुतासिर है। पहले जो सिलेंडर हमें 1200 में दस्तियाब था मार्केट के अंदर, आज वो 2550 रुपए का फरोख्त है, जिसकी वजह से आम कस्टमर दुकान पे नहीं आ रहा और महंगाई की वजह से कारोबार मंदे है। शहरी का कहना था कि इसकी तनख्वाह 25,000 है, अब घर चलाना मुश्किल हो गया है। हमारी तनख्वाह 25,000 है और हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब बच्चों की पढ़ाई और इसके लिए सोचते हैं पीछे, तो घर का खर्चा भी नहीं पूरा कर सकते हैं। गवर्नमेंट से यही है कि मेहरबानी करें, महंगाई को कम किया जाए और हम कुछ अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बना सकें। हुकूमत से मायूस एक और शहरी का कहना था कि अब तो खुदकुशी करने को दिल करता है। टमाटर लें, घी लें, चीनी लें, क्या 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 शामिल है। हम ये खुदकुशी के करने के लिए काबिल हो चुके हैं, हम अब क्या करें। वोट देकर पीटीआई से उम्मीदें रखने वाले अवाम अब हुकूमत से नाला हैं। बढ़ती हुई महंगाई ने लोगों को मुश्किल दुराहे पर खड़ा कर दिया है। जहां पर दुकानदार परेशान है, वहां पर शहरी भी चीख उठे हैं। शहरियों का यही मुतालबा है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। साथी कैमरामैन के साथ जावेद इकबाल, रोई, जामपुर। वसीब इत्तेहाद पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा भी महंगाई के खिलाफ मैदान में आ गए। वडीर आशिक हुसैन सांगी का कहना था कि महंगाई के सुनामी से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया, हुक्मरान रिलीफ दें वरना घर जाएं। आमिर भट्टी की रिपोर्ट। मीमियार खान में वसीब इत्तेहाद पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा वडेरा आशिक हुसैन सांगी का कहना था कि महंगी होने के बावजूद भी चीनी गायब है। तो गरीब की जरूरियात तो सबसे पहले गरीब की जरूरत है आटा, चीनी और घी, वो भी उसको नहीं मिल रहा, तो फिर गरीब किधर जाए। मरकजी जनरल सेक्रेटरी शाहिद महमूद कांजू का कहना था कि पेट्रोल, आटा, घी, चीनी और खादों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। पेट्रोल दुनिया से सस्ता हो रहा है, हमारे मुल्क में महंगा हो रहा है। अब बात यह है कि जाहिर है ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर तो नहीं है, मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। रहनुमा वसीब इत्तेहाद पाकिस्तान नौशीन हाशमी एडवोकेट का कहना था कि सरायकी वसीब के बासियों की आमदन वही है, मगर इखराजात 4 गुना बढ़ गए। अब महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि जो एक गरीब आवाम है, यहाँ पे बात जो हो रही है वो गरीब आवाम की हो रही है, क्योंकि जो तबका अमीर तबका है उसको इससे डेफिनेटली कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गरीब तबका है वो आए रोज महंगाई की चक्की में पिस रहा है। इतनी भी महंगाई हुई है ये पूरे 70 साल में नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड कायम हुआ है।
ये 1200-1300 रुपये मन आटा था, आज 2800-3000 रुपये मन मिल रहा है। और मजदूर की मजदूरी जो है वो 600 रुपये है। 600 रुपये में गरीब आदमी वो क्या खाना पीना करेगा, क्या बच्चों की तरबियत करेगा। मरकजी रहनुमा वसेब इत्तेहाद पाकिस्तान का कहना था कि हुकूमत वादे पूरे करते हुए अवाम को रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब का जीना मुश्किल कर दिया। बिहाड़ी के रिक्शा ड्राइवरों ने अलामती फांसियां ले लेंगे और रैली भी निकाली है। हमें रिपोर्ट करेंगे बिहाड़ी से हाफिज साले मोहम्मद। तब्दीली सरकार का हर वादा झूठ निकला। बढ़ती महंगाई ने गरीब का चूल्हा ठंडा कर दिया। बिहाड़ी में इत्तेहाद रक्षा यूनियन ने अनोखा एहतजाज किया। वी चौक में महंगाई के खिलाफ अलामती फांसियां ली और गो इमरान गो के नारे लगाए। सरप्रस्ते आला राना फखरुस्सलाम का कहना था कि हुकूमत ने गरीब मुकाओ मुहिम शुरू कर रखी है। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਰਫ ਨਿਆਜ਼ੀ ਖਾਨ ਉਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਾਨ, ਇਹਨੇ ਆਵਾਮ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮਸਨੂਆਤ 46 ਰੁਪਏ ਕਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ 84 ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੈਰਜ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ। सदर रक्षा यूनियन चौधरी शब्बीर का कहना था कि दवाई खरीदें तो घर में खाना नहीं पकता। इस वक्त घर का सामान बेचने पर भी मजबूर है। मेहरबानी करो, इस मुल्क ते रहम फरमाओ। ਅਸੀਂ 300-400 ਰੁਪਏ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਖਰੀਦੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ और जान छाड़ दो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। रक्षा ड्राइवरों का कहना था कि पीटीआई सरकार ने महंगाई से गरीब की कमर तोड़ के रख दी है। सवाल करते हैं कि अब उनका तब्दीली का नारा कहाँ है? जो हमें वो तब्दीली ला के दिखाना चाहते, जो उस नया पाकिस्तान दिखाना चाहते थे, वो पाकिस्तानी किधर है? अल्लाह के बंदे, हम तो अपनी रोटी पानी किससे मजबूर हैं? हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने से महरूम हैं। महंगाई ने जहां हर तबका जिंदगी को मुतासर किया है, वहां रक्षा ड्राइवर्स भी परेशान हैं। कैमरा टीम के साथ हाफिज साले मोहम्मद, रोही, बिहाड़ी। महंगाई का बड़ा रैला। खानेमाल के शहरियों ने लोडर रिक्शे बेचकर गधा गाड़ियां खरीद लीं। कहते हैं हुकूमती पॉलिसीज की वजह से कौम तनज़्ज़ुली की जानिब जा रही है। मोहम्मद नदीम मुगल की रिपोर्ट। महंगे पेट्रोल ने कौम को रुला दिया। शहरी गाड़ियों से रेडियों पर आ गए। खानेवाल के मलिक राशिद और मोहम्मद अकरम लोडर रिक्शे बेचकर रेडियां खरीद लीं। ये जी पेट्रोल की वजह से हर रोज़ाना शाम को सोते हैं, सुबह उठते हैं, पेट्रोल का रेट बड़ा होता है, जिसकी वजह से महंगाई है। रिक्शे लोडर बेच गए। मेरे साथ कम से कम 10 रिक्शे वाले हैं, उन्होंने रिक्शे बेच के दोबारा गदर रेडी लेनी है। मैंने तो ले लिया है और भी लेते फिर रहे हैं। सिर्फ वजह क्या है जी, पेट्रोल की वजह से। मोहम्मद अरशद और मोहम्मद सदीक ने भी रिक्शे बेचकर रेडियां खरीद लीं। कहते हैं हुकूमती पॉलिसियों ने गधा गाड़ी चलाने पर मजबूर कर दिया। लोडिंग रिक्शे जो पेट्रोल महंगा हो गया है, वो उठा के घर खड़ी कर दी। अब वो खुद रेडी फिर लेनी पड़ेगी जी हमें, गरीब आदमी होना। अब गरीब आदमी जो है पेट्रोल नहीं अफोर्ड कर सकते, 150 रुपये लीटर तेल कौन लेगी? मोहम्मद अरशद और मोहम्मद सदीक का कहना था कि दुनिया जिद्दत की तरफ जा रही है और हम हुकूमती नाहली की वजह से तनज़्ज़ुली की जानिब गामज़न हैं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने ज़माना एक कदीम की सवारियों पर मेहनत मजदूरी करने के लिए मजबूर कर दिया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज़, खानेवाल। रंगपुर के टैक्सी ड्राइवर पेट्रोल महंगा होने पर सरापा एहतजाज। कहते हैं रेंट कार को खत्म हो चुका, बच्चे भूखे मर रहे हैं, कोई भी सवारी पे बैठने को तैयार नहीं। राना परवेज अख्तर की रिपोर्ट। रंगपुर के टैक्सी ड्राइवरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि टैक्सी ड्राइवर्स का काम ना होने के बराबर है। ड्राइवरों का कहना था कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से गाड़ियां रुक गई और बच्चे भूखे मर रहे हैं। काम नहीं होगा तो चूल्हा कैसे जलेगा? हुकूमत से अपील करते हैं कि पेट्रोल की कीमतें कम करे ताकि गरीब लोग अपनी रोजी कर सके। हम सारा दिन फारग बैठ कर चले जाते हैं, यहाँ पे हमें रोजी नहीं मिलती, बच्चों को क्या खिलाएं हम। ड्राइवरों का मजीद कहना था कि कोई सवारी गाड़ी रेंट पर लेने को तैयार नहीं। सुबह से शाम तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, कोई पूछता ही नहीं। इसमें तो सरासर ज्यादती है। पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए। सवारी रेंट पे गाड़ी नहीं लेके जा रहे, गाड़ियों का हजूम लगा हुआ है। ड्राइवरों का ये हाल है कि सारा दिन फारग बैठे रहते हैं। ड्राइवरों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। मुल्तान में बेरोजगारी के बायस फैमिली केसेस बढ़ गए हैं। एक माह में 2169 केस रिपोर्ट हुए हैं। ऐसे में तलाक की शरह भी बढ़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए।
ملتان میں طلاق، بچوں کی حوالگی، حق مہر اور جہیز کے کیس بڑھ گئے، تعداد 10,000 تک پہنچ گئی۔ ہر ماہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کے 2,000 سے زائد کیس رپورٹ ہو رہے ہیں۔ فیملی کیس میں خطرناک اضافے کی وجہ بے روزگاری اور بڑھتی ہوئی مہنگائی قرار۔ حق المہر کا نہ ملنا، خرچے کا نہ ملنا، مردوں کا نشے، مہنگائی، بے روزگاری کی وجہ سے جو میل ہیں وہ نشے کی طرف گامزن ہے، وہ نشے کے عادی ہیں، اس وجہ سے وہ صحیح طریقے سے اپنی فیملیز کو سپورٹ نہیں کر پاتے۔ تو اس میں یہ بہت ساری وجوہات ہیں۔ بچوں کی حوالگی، حق مہر، جہیز کا سامان اور طلاق کی شرح میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ ایک ماہ کے دوران 2100 سے زائد کیس دائر، جبکہ 2000 کے لگ بھگ نمٹائے گئے۔ قانونی ماہرین موبائل فون کے استعمال اور ڈراموں کی رنگینیوں کو لڑائی جھگڑے کی وجہ بتاتے ہیں۔ ڈرامے جو دیکھتی ہیں چھوٹی جو کم عمر بچیاں ہوتی ہیں وہ حقیقی حالات کو نہیں سمجھ سکتی ہیں کہ حقائق کیا ہے، تو وہ آج کل یہ بہت کم عمر بچیاں اور بچے جو ہیں وہ ادھر کورٹ میرج کرتے ہیں، جو کہ چند ماہ چلتے ہیں، اس کے بعد وہ بھی طلاق کی صورت میں ان کا نتیجہ نکلتا ہے۔ معاشرے میں بڑھتا عدم برداشت کا رجحان کئی گھرانے اجاڑ چکا ہے، جس کے خاتمے کے لیے آگاہی کی ضرورت ہے۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان۔ نیشتر اسپتال میں 2 مستحق نابینا افراد کا کامیاب آپریشن، کارنیل گرافٹ کے ذریعے بنائی لوٹا دی گئی لاکھوں روپے مالیت کی کارنیہ تنظیم اپنا نے عطیہ کیے، مفت علاج پر مریض خوشی سے نہال۔ نیشتر میڈیکل یونیورسٹی اسپتال کے شعبہ امراض چشم کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر راشد قمر راؤ کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ نابینا پن کا شکار مریضوں کی بینائی لوٹانے کا سلسلہ جاری۔ 70 سالہ محمد سرور اور 62 سالہ غلام شبیر نے بینائی واپس لوٹنے پر ڈاکٹروں اور تنظیم اپنا کا شکریہ ادا کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر راشد قمر راؤ کا کہنا تھا کہ کارنیا ٹرانسپلانٹ کے مستحق مریض خود کو رجسٹر کروائیں تاکہ ان کا کارنیا ٹرانسپلانٹ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 6 ماہ میں آئی بینک بنانے کا ارادہ ہے۔ پولیٹیکل اسسٹنٹ کوہی سلیمان محمد، ان کا کہنا تھا کہ بی ایم پی نے بلوچستان سے آنے والے غیر ملکی ٹائروں سے بھرا ٹرک پکڑ لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کھر کی حدود میں ایس ایچ او علی حیدر خان لغاری کے ہمراہ کارروائی کی گئی۔ بی ایم پی نے بلوچستان سے آنے والا غیر ملکی ٹائروں سے بھرا ٹرک پکڑ لیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نان کسٹم پیڈ غیر ملکی ٹائروں کی قیمت 1.5 کروڑ سے زائد ہے۔ محمد اکرام ملک نے کہا کہ بارڈر ملٹری پولیس کو اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایات کر دی ہے۔ اب آپ کو احمد پور شرکیہ لیے چلتے ہیں، جہاں نامور صحافی نذیر لغاری کی کتاب وثاق کی تقریب رونمائی منعقد ہوئی ہے۔ سرائیکی زبان میں لکھی کتاب سرائیکی وسیب کے کلچر کو بیان کرتی ہے۔ صحافی قابل عزت، قابل احترام محترم نذیر لغاری صاحب، سرائیکی عوامی ترمت تحریک کی اگوان محترمہ سینڈ ادی آفت الدین صاحبہ، لارڈ صاحب اور پاکستان سرائیکی پارٹی کے جنرل سیکرٹری اور ساری سرائیکی کی سب نشاور اور متحرک آواز محترم اکبر انصاری صاحب، سرائیکی عوامی ترمت تحریک کی نائب صدر سینٹ ادی مینا، امتیاز چنن صاحب، راشد بوڈا صاحب، میں ناصر بیٹیاں ناصر رضوی صاحب بھی ہیں، عطاف طاہر صاحب اور قادری صاحب بھی تشریف فرما رہے ہیں، اور باقی سارے میرے احمد پور شرکیہ کے دھرتی کے دیاں یعنی تے میرے تمام ساتھی ضلع تے میرے شہریوں، السلام علیکم۔ آج ہم سارے کٹھے کھڑے ہیں وثاق کی ڈھونڈ کھلائی کی ذاتی۔ وثاق ہے کیا؟ وثاق لوہا ہے میرے وسیب کا، میری دھرتی کا، میرے قیامت کو شرکیہ کا، میرے روشنی زمان کا، میری سرائیکی تہذیب تے ثقافت دا لوہا ہے جے بیان کیتا گئے سارا او تنگ، ساریاں او دکھایا، ساریاں مصیبتاں جیڑی عورت دے دی ہے۔ دیگر خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین ضلع کونسل میاں والی ملک عمر فیروز زویا نے بجٹ اجلاس کا اعلان کر دیا۔ بجٹ اجلاس اگلے ہفتے کسی روز بلایا جائے گا۔ اختر مجاز کی رپورٹ۔
चेयरमैन जिला कौंसिल मलिक उमर फिरोज जोया ने बजट इजलास बुलाने का ऐलान कर दिया। बजट इजलास के बाद यूसी सतह पर तरक्याती काम शुरू होंगे। चेयरमैन जिला कौंसिल मलिक उमर फिरोज जोया ने बताया कि फंड तमाम यूनियन कौंसिल में बराबरी की सतह पर तकसीम किए जाएंगे। हमें ये टाइम एक्सटेंड हो जाता तो हम चलते रहते तो एक अच्छा आपको लोगों को ग्रास रूट लेवल तक रिलीफ देते रहते जैसे हम दे रहे थे। उन्होंने बताया कि फंड बारे मसाइल हल कर लिए गए हैं, शहरियों को भरपूर सहूलियात फराम करने की कोशिश करेंगे। मेरा प्लान है जल्द से जल्द बजट इजलास बुलाने का। उस बजट इजलास पे भी हमारे ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शन डाल दी गई है कि हम डेवलपमेंट में हमें क्या करने देंगे नहीं करने देंगे। हम उसका वे आउट निकाल रहे हैं लीगल वे से, और इंशाल्लाह जब अगर बजट होगा तो सब मियाँ वाली के अवाम का बजट है, किसी एक इंसान का बजट नहीं है। चेयरमैन जिला कौंसिल मियाँ वाली मलिक उमर फिरोज जोया ने मजीद कहा कि यूसी चेयरमैनों की मुशावरत से ही काम शुरू किए जाएंगे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियाँ वाली। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने का सिलसिला जारी है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर ने ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजिमीन को मुस्तकिल नौकरी का परवाना दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। सरपरस्ती आला वाइडीए डॉक्टर शबीर बराज का कहना था कि 2 साल एडहॉक पर काम करने वाले डॉक्टर को 3 या 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। एडहॉक मुलाजमीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी अहकाम दिए। डॉक्टरों का इस्तेसाल न ही हमारे लिए अच्छा है और न ही महकमा सेहत के लिए। हम स्टेप वाइज सारे ही मुलाजमीन को रेगुलराइजेशन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत है, सर्विस स्टैट्यूट्स हमारे अप्रूव हुए हैं। काफ़ी लोगों को आज हमने लेटर दिए हैं जैसे आप देख रहे हैं, और इसी तरह यूं ही इनके इंटरव्यूज़ मुकम्मल हो रहे हैं तो हम इनको रेगुलर कर रहे हैं। और इनको साथ साथ ये भी है कि रेगुलर होने के बाद भी जितनी मेहनत ये पहले कर रहे थे बाद में ही भी ये इतनी ही मेहनत करेंगे। सदर ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर अमजद अली का कहना था कि हुकूमत एक पॉलिसी वजह कर दे, जिस चीज का एक्शन लिया जाता है वो तबाह हो जाती है। आज ज़्यादा खुशी का दिन है और ये ख्वाजा फरीद के मुलाजमीन के लिए बहुत एक अहम दिन है, और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ इस दिन का काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, और हम तमाम मुलाजमीन वीसी साहब का और तमाम मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। सारे जो है ना बहुत खुश हैं, लेटर हमें मिल गया, हम वीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। काफ़ी मेहनत कर रहे थे, 2016 से काम कर रहे थे यहाँ पे। हमारी ख्वाहिश थी कि हम रेगुलर हो जाएं, और आज हम रेगुलर होके बहुत खुशी हुई है हमें सबको। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ढाक पर काम करने वाले डॉक्टरों को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया गया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, नहीम यार खान। मुशीर वज़ीर आला पंजाब हाजी जावेद अख्तर अंसारी के बड़े भाई हाजी अमीन अंसारी की नमाज जनाजा जिना पार्क मुल्तान में अदा कर दी गई। सियासी और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। अमजद मलिक की रिपोर्ट देखिए। मुशीर वज़ीर आला पंजाब हाजी जावेद अख्तर अंसारी के बड़े भाई हाजी मोहम्मद अमीन अंसारी का नमाज जनाजा अलामा मजर सईद काज़मी ने पढ़ाया। नमाज जनाजा में मुशीर वज़ीर आला हाजी जावेद अख्तर अंसारी, MPA नदीम कुरैशी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मखदूम जावेद हाशमी, साबिक रुकन कौमी असम्बली मलिक अब्दुल गफार डोगर, डिप्टी मेयर हाजी सईद अहमद अंसारी, साबिक MPA आमिर सईद अंसारी, साबिक MPA शहद महमूद खान, डिवीजनल सदर मुल्तान पीपल्स पार्टी खालिद हनीफ लोधी, चेयरमैन MDA राना अब्दुल जब्बार, PTI के जिलाई सदर खालिद जवेद वड़ाइच, सिटी सदर मलिक अदनान डोगर, सिटी सदर मुस्लिम लीग नून राना शहदुल हसन, साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद अराई, लीगी रहनुमा मलिक अनवर समेत कसीर तादाद में अहम सियासी शख्सियात ने शिरकत की। नमाज जनाजा में यूसी चेयरमैन शेख इमरान अरशद, बाबर शाह, शेख रफीक, नायब सदर शेख वाजिद शौकत, अलामा फरूक खान सईदी, लीगी रहनुमा आमिर मंजूर अंसारी, सदर फुटबॉल एसोसिएशन मियां जावेद कुरैशी, अमजद भट्टी, MDA के वाइस चेयरमैन नासिर अशरफ, नायब सदर कपड़ा मार्केट राना मुदस्सिर समेत अहम कारोबारी, मजहबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मरहूम हाजी मोहम्मद अमीन अंसारी की कुलखानी कल सुबह 9 बजे डेरा अंसारी पर अदा की जाएगी। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ अमजद मलिक, मुल्तान।